Audio Jungle. Please start. Okay. So what we are trying to understand, the scope of variable is limited for that function where it is declared. See here, function can have local variables, can have same name. That is what we done when we declared a variable a in main. We accepted, we return a variable a at the time of definition that is valid. But the scope of mains variable is not available in, okay, let's do that in another way. ये समझ में आ गया ना आपको अभी जो मैंने किया था अभी. सो यहां पे a is 22, that is from main, right? And x is undefined. Okay, so visibility local होती है, global नहीं होती है. So it is printed, हो गया, and program is completed. Okay, अभी हम लोग क्या करते हैं? Now you see, now I'm changing the name to a again, having same name. Just to explain you कि फंक्शन डेफिनेशन में आप नेम दे सकते हो एज इट वाज विथ पेरेंट, बट दोनों का एड्रेस जो होता है वो अलग अलग होता है. सो लेट्स सी, यहां पे मैं क्या करता हूं, printf, हाउ टू प्रिंट एड्रेस. कोई बता सकेगा? and percent variable name. डी. and percent a. एड्रेस प्रिंट करना है मेरे को, एक्सेप्ट नहीं करना है. ओके. Yes. Thanks. Comma. Let's do this program very quickly. Very interesting program. Is compilation error? No compilation. So logically we are doing right. So F8 करते हैं या कंट्रोल F9 करो पहले क्विकली. 2 डालते हैं. So it came on the debug point. Please enter a number 2, 196596 from main, and hello from function 2 is something minus. क्या हुआ? सब तो सही है ना? फिर से एक बार हम लोग रन करते हैं F8 करके. सर वो माइनस है ना? वो माइनस नहीं है, एक्चुअली हमने वो एड्रेस दिया है. हेलो फ्रॉम फंक्शन के आगे जो डैश नहीं, बट वो तो न्यू लाइन पे दिया ना अपन ने. ये जो वैल्यू है ये नया लाइन पे दिया है अपन ने पर्पसली. लेट्स डू दिस F8. oh sorry, yes, modified. F8 3, a में 3 है, x अनडिफाइंड. x कहां पे है अभी? F8 x तो लिया नहीं था मैंने, x क्यों आ रहा है इधर?
अच्छा, एक्स तो कहीं भी नहीं है, पूरे प्रोग्राम में एक्स नहीं है, इसके लिए अनडिफाइंड बोल रहा है वो। ये एक्स को अगर हटाता हूं मैं, अच्छा इसको बाद में से हटाएंगे, अभी तो डिबग चल रहा है ना अपना। सो हेलो फ्रॉम फंक्शन का जो एड्रेस है, इट इज नॉट सेम एज what we have got in main function. So both variables are actually different, okay, because their scope is different because of functions. Okay, sorry. Okay, समझ में आ रहा है आपको? क्या अभी आप लोग एक एक फंक्शन कर सकते हो, लिख सकते हो क्या, which will accept two numbers and give an addition. Write add function. Okay, name of the function should be add, which will print addition of two numbers. It should accept two numbers as an argument and print the sum of it. Okay, so you can write the function name as an add quickly, everyone. इसके बाद में मैं फंक्शन एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज टुडे इज 30 अगस्त। कल का एक लेक्चर लेंगे मैथ्स, एंड देन ट्यूसडे वी हैव एग्जाम। So it will be short exam, don't worry, but it will be tricky. It may not be like hello world wala. Unless and until your concepts are clear, then only you can choose an answer, okay, or give the answer. Okay, आप कीजिए प्रोग्राम फटाफट। सो इसके बाद में मोस्टली अपने दो सेशन हो गए ज्यादा से ज्यादा, एक मंडे का टुमारो एंड ट्यूसडे एज एन एग्जाम। फर्स्ट सेशन में एग्जाम होगी, सेकंड सेशन में इसका क्लैरिफिकेशन देंगे, डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल रैप दिस कोर्स इटसेल्फ। ओके, आप लोग प्रोग्राम कर रहे हो ना? यस, थैंक यू। परसेंट धनीश बोल रहा है परसेंट यू फॉर एड्रेस। ओके, लेट मी ट्राई नाउ। यू Yeah, Danish, thanks. Yeah, I'll check just. So you can see the both address are different actually, right? 65524 and 65522. One size, one integer size away, 2 byte का डिफरेंस आया। सो देह का प्रोग्राम उसने किया है, आई एम चेकिंग। ए बी प्रिंट maybe return 0 x in int y print। हाँ ठीक है, बट ये चल गया क्या विजय आपका प्रोग्राम?
इसमें डिक्लेरेशन नहीं किया आपने, टर्बो सी पे नहीं चलेगा ये, टर्बो सी पे नहीं चलेगा ये प्रोग्राम, क्योंकि ना वो डिक्लेरेशन नहीं रहेगा तो वो अलाउ नहीं करता है, सो यू हैव टू डिक्लेयर इट फर्स्ट. ओके, anybody else? Yeah, there you can raise your hand as you done it. So let's wait for 2 more minutes. It's not complicated program. Yeah, thank you. It's not complicated program, but your understanding is very important. अगर आपको समझ में आया तो इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, बट आपको समझ में नहीं आया फंक्शन क्या होता है, देन इट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड. फिर 20 मिनट भी नहीं होगा. Manish, good. Try, everyone try. Danish, Dipali, Dipti, Amin. Yeah. Sejal, good. But it is giving me some warning from which I am not success. वार्निंग रहने तो वार्निंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वार्निंग से प्रोग्राम चलता है, एरर नहीं आनी चाहिए. और वो सम करके दे रहा है कि नहीं दे रहा है वो देखिए आप. आपको क्या करना है, जस्ट फॉर गाइडेंस अंटिल अदर्स आर डूइंग द प्रोग्राम, आपको क्या करना है, प्रिंट हेलो फंक्शन में हमने एक वेरिएबल लिया, वैसे आपको दूसरा वेरिएबल लेना है, कॉमा सेपरेटेड, राइट, और 2 वेरिएबल उसमें पास करना है, और प्रिंटफ में %d के आगे नंबर 1 प्लस नंबर 2 ऐसे प्रिंट करना है. मैंने पूरा लॉजिक बता दिया आपको. या थैंक्स दीपाली. ओके, so let's do one more program. Sorry, let's do this program, okay, for those who didn't understand, right? Okay, यही प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं हम लोग. हमको क्या करना है, हमको 2 वेरिएबल चाहिए अभी इसके अंदर, राइट. आई वांट अ फंक्शन which is going to accept variable, 2 variable, one variable x, another variable. यहां पे जो मैंने नाम दिया है ना, यही नाम उसके इस वेरिएबल का नाम उसके डेफिनेशन में रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. मैं यहां पे अगर a लिखता हूं और यहां पे b लिखता हूं, और नीचे मैं मेरे हिसाब से नाम दे सकता हूं, मैं नीचे, बट टाइप सेम होना चाहिए इसका, no1 int no2. सो डिक्लेरेशन में जो नाम मैंने वेरिएबल का डिक्लेयर किया है वही डेफिनेशन में रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, इट्स ए स्मॉल, अगेन वन मोर कंसेप्ट इन्वॉल्व हिडन. इससे क्या होता है, इससे आप कभी कभी इंटरव्यू के इसमें गड़बड़ करते हो छोटे से इसमें. ओके, सो यहां पे मेरे को 2 वेरिएबल एक्सेप्ट करना है, तो लेट मी राइट वन मोर वेरिएबल हियर, a comma b, accept it %d %b. यहां तक किसने किया, अभी इसको जरूरत नहीं है, अपन अननेसेसरी प्रिंटफ निकाल देते हैं.
यहां पे मेरे को क्या करना है, यहां पे मेरे को अगर मैं 2 भेजूंगा नहीं ना इसको अभी, तो ये चिल्लाएगा। देखिए, टू फ्यू पैरामीटर्स मतलब मैं कम पैरामीटर भेज रहा हूं, एक्सपेक्टेड है 2, वो बता रहा है उधर। ये एरर लेना आप सीखो, जितना जल्दी आप एरर लेना सीखोगे ना, आपका प्रोग्रामिंग उतना सॉलिड बनता जाएगा, राइट। इफ यू फील कि मेरे प्रोग्राम में एरर आना ही नहीं चाहिए, then in that case two extreme condition will happen. Either you are really best programmer or you are really dumb programmer, or you don't know anything on the programming, right? So I am in between. I usually take the errors, okay, and I am happy to resolve that, okay, but resolution आना चाहिए, okay. A कॉमा बी, अरे 2 पैरामीटर भेजना है ना, तो 2 भेज रहा हूं मैं। तो यहां पे NO1 NO2 किया मैंने, अभी यहां पे A मिलेगा नहीं मेरे को, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, NO1 प्लस NO2, राइट। अभी ये ओके, Alt F9 करते हैं, क्या हुआ, अनडिफाइंड सिंबल A कहां पे, नीचे। अच्छा, ये लाइन नहीं चाहिए मेरे को, मैं निकाल ही देता हूं इसको, राइट। जो भी नहीं चाहिए ना वो निकाल देते हैं अपन। लेट्स डू द प्रोग्राम क्लीनर। ये भी लाइन नहीं चाहिए, ओके, दिस इज ओके। Alt F9, गुड, कंट्रोल F9, 2 और 3, यहां पे आया, क्या हुआ, यहां पे F8 बोला मैंने, तो इसने यहां पे देखिए आपने वापस F8 करता हूं, वापस F8 करता हूं, 2 + 3 5 दे दिया उसने, चल गया अपना प्रोग्राम। बट अभी क्या हुआ, लॉजिक कंपाइलेशन पॉइंट ऑफ व्यू सब सही है, बट इज इट ओके फ्रॉम द लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, नेमिंग क्लेचर पॉइंट ऑफ व्यू, ये प्रिंट हेलो नाम ही गलत है, राइट। इसको बोलना चाहिए ऐड, इसको मेरे को बोलना चाहिए, नया फंक्शन बनाना चाहिए मैंने विथ द नेम ऑफ ऐड, राइट। ऐड में, और फिर यहां पे मैंने इसको चेंज किया ऐड, राइट, इसको चेंज किया मैंने ऐड। नाउ दिस लुक्स ओके, राइट। सो लेट्स ट्राई, चल रहा है क्या काम अपना, 12 10, ओके, F8 22, सही है, राइट। बट स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम, कोई भी फंक्शन जो प्रोसेसिंग करता है, प्रिंटफ वाले जो स्टेटमेंट होते हैं, दैट शुड नॉट बी इन द प्रोसेसिंग एरिया। प्रोसेसिंग एरिया और प्रिंटिंग हैज टू बी गिवन एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दियर पैरेंट। यहां पे हमको क्या करना होगा, ये प्रिंटफ भाई मेरे को यहां पे नहीं देना है एज पर बेस्ट प्रैक्टिस, ओके, ये आपको कहीं दिखेगा नहीं। सो यू हैव टू, यू कैन नॉट सी दिस काइंड ऑफ इनपुट्स इन द बुक, ओके। यहां पे मेरे को क्या करना है, यहां पे मेरे को रिटर्न करना है, यहां पे, सो वी आर यूजिंग, सॉरी, रिटर्न NO1 प्लस NO2, ठीक है। अभी रिटर्न करना है तो मेरे को रिटर्न टाइप भी लिखना पड़ेगा, इनका रिटर्न टाइप है अभी तो इंटीजर, सो लेट्स मेक द चेंज इंटीजर, राइट। ऐसे ही ऊपर भी चेंज करना पड़ेगा इसके प्रोटोटाइप में, लेट्स डू दैट इंटीजर। अब ये सारा किया मैंने, अब Alt F9 करते हैं, राइट। अभी कंट्रोल F9 भी, एक मिनट इसका मैं हटा देता हूं, ये डिबग पॉइंट जो है ना, ये जाता नहीं है ऐसे, Alt D ब्रेक पॉइंट, हाँ ऐसे जाता है। कंट्रोल F9 किया मैंने, यहां पे मैंने 2 + 3 करना है मेरे को, क्या हुआ, नो आउटपुट, बट देयर इज नो एरर, आउटपुट ही नहीं है मेरे पास, गेट ch की वजह से रुक गया वो। क्या हुआ, मैंने इसका जो रिटर्न वैल्यू था वो मैंने कलेक्ट ही नहीं किया, सो आई हैव टू कलेक्ट इट, राइट।
सो मैं इसको कलेक्ट करता हूं आंसर में. So this will return to which location from where it is getting called or calling point. That is why that concept is important. It is big concept. One session is not enough, I know, but I'm trying because we have limited number of time. I don't worry how many people are attending. Those who are attending, they will definitely get good inputs. Those who not, they can read this or they can watch this video, which is available always. ओके नाउ अभी देखते हैं. अभी हमने वो आंसर को तो कलेक्ट किया, बट वी हैवंट स्टिल प्रिंटेड, राइट? सो लेट्स प्रिंट इट. printf sum of %d और स्टेट लिखते हैं ना अपन. %d सॉरी %d प्लस %d इक्वल टू %d डबल कोट. यहां पे क्या आएगा? a कॉमा b कॉमा आंसर. ठीक है, ये कर देते हैं. कंट्रोल F9. 2,4 6. परफेक्ट. सो क्या सीखा हमने यहां पे? फंक्शन कैन रिटर्न अ वैल्यू, प्रोसेस वैल्यू. अब ये काम कैसे करता है वो भी देखते हैं अपन. ओके, लेट्स डू. एक ब्रेक पॉइंट लगाना पड़ेगा वापस. रिटर्न. तो ये होता है तरीका फंक्शन लिखने का. अगर आपको मैं बोलूं कि राइट अनदर फंक्शन विच गिव्स मी सब्सट्रैक्शन, कैन यू डू क्विकली? नया फंक्शन बनाना है, ऐड फंक्शन को नहीं मॉडिफाई करना है. डू इट. आई एम ऑल्सो डूइंग इट. पहला प्रोटोटाइप नाम देना है no1. अच्छा, यहां पे मैं a लिखता हूं. int b सेमीकोलन किया, मैंने डिक्लेयर किया. फिर मैं उसका डेफिनेशन देता हूं सेकंड. और यहां पे int रिटर्न कर रहा हूं सब. एक रहेगा no1, फिर से no1 लिया, no2. I'm actually explaining many concepts to you, all of you, in short period of time. Return simple करना है अपने को. no1 माइनस no2. ठीक है. अब ये no1 ऐड का is not same as sub का no1. okay, even if those variables are declared with the same name, you can declare with same name, but उसका जो स्कोप है उस फंक्शन के लिए लोकल है. ऐड के वेरिएबल सब में नहीं मिलेंगे, सबके वेरिएबल ऐड में नहीं मिलेंगे. अंडरस्टैंड? अभी यहां पे sorry, I can call my function directly into printf instead of some answer. %d minus %d इक्वल टू %d. यहां पे a कॉमा b कॉमा सब ऑफ a कॉमा b. ये तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, चलता कि नहीं पता नहीं. नो एरर, मतलब आधे लड़ाई हमने जीत लिया. अब देखते. सो यहां पे 3,4. पहला आंसर आएगा 7, दूसरा आंसर आएगा -1. 3 + 4 7, 3 - 4 is 1. एक न्यू लाइन देते हैं. ये आपने देखा क्या? डिफरेंट वे ऑफ यूजिंग द फंक्शन. दैट इज वाई C इज कंसिडर्ड एंड मदर ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे छुपे हुए हैं इसके अंदर. जितना आप एक्सप्लोर करेंगे उतना वो आपको और एक्सप्लोर करने के लिए मजबूर करेगा. ओके, दिस इज हाउ इट वर्क्स. मैंने क्या किया,
ये सब को डायरेक्टली कॉल किया इधर, राइट। अभी ये सेम सब को मैं ऐसे भी कर सकता हूं, printf without using a and b variable, printf %d minus %d equal to %d colon comma 44 minus 22 सॉरी 21 करते हैं माइनस सम ऑफ, सॉरी सम नहीं, हाँ ये नहीं करना है आपको, ठीक है, लेट्स डू दैट 44। ये मैं बोलना चाहता था आपको कि इस तरह का प्रोग्रामिंग गलत होता है, ये सिंटैक्टिकली कोई एरर नहीं देगा आपको। अच्छा क्या हुआ, सम शुड हैव प्रोटोटाइप, मैं प्रोटोटाइप दिया ना मैंने। Sir, it should be sub SUB. अच्छा अच्छा ओके ओके, हाँ अच्छा, इसको फिर हम लोग क्या करते हैं, मेरे को ऐड करना है, थैंक यू। हाँ अभी ये इसने एरर नहीं दिया, अभी देखो क्या हुआ, अभी 2,4, अरे यार ये एक मिनट, एंड यहां पे मेरे को, हाँ अभी करते हैं अपन 2,4, हाँ क्या हुआ 2,4, 2 + 4 2 - 4 44 - 21 कहां से आ गए, एक मिनट, मैंने कुछ कर किया है, वो एडिशन कर रहे हैं सब। हाँ हाँ क्या किया, सर सब्ट्रैक्शन की जगह पे लास्ट। हाँ यही मेरे को आपको बताना चाहता था मैं कि 44 मैंने हार्ड कोडेड वैल्यू लिया है अभी, ओके, अंदर 2,4 से कोई संबंध नहीं है, 2,4 का संबंध 2 + 4 और 2 - 4 के लिए है, बट लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है वहां पे मैंने वैल्यू लिया है 44 - 21, इसका आंसर मेरे को आना चाहिए था 23, बट दिया उसने 65, विच इज नथिंग बट एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। तो ये जो है ना, इस तरीके का जो प्रोग्रामिंग है ये आपको नहीं करना है। मैं जब बोल रहा हूं सब्सट्रैक्शन, तो आपने एडिशन वाला फंक्शन क्यों कॉल किया, एडिशन में अगर इसको मेरे को करेक्ट करना है, राइट, आई हैव 2 ऑप्शन, आइदर राइट न्यू फंक्शन और कॉल अनदर फंक्शन विच इज हैविंग सब, और टू गिव द राइट आंसर, राइट, इन एड फंक्शन मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को ये ऑपरेटर चेंज करना पड़ेगा। अभी बोल रहा हूं मैं, फंक्शन का नाम रख रहा हूं मैं ऐड, लॉजिक लिख रहा हूं माइनस का, ये चलेगा क्या, ये जब 1,000 लाइन 10,000 लाइन 1,00,000 लाइन का जब होगा तो उसकी लग जाएगी बात, क्योंकि आपने ये इलॉजिकल लिखा है। दिस इज वन ऑफ द रूल, ये कंपाइलेशन एरर नहीं है, ये लॉजिकल एरर है कि आप ऐड करने को बोल रहे हो, ऑपरेशन कर रहे हो सब्ट्रैक्शन का, राइट, दैट इज नॉट राइट। समझ में आ रहा है, अभी आंसर तो सही देगा, बट व्हाई यू आर ट्रीटिंग योर नेम एज ऐड, अभी आंसर सही दिया उसने, बट प्रोग्राम जब मैं रीड करने जाता हूं अंदर कोडिंग में, और आई सी यार %d - %d इक्वल टू %d, आउटपुट भी सही आ रहा है, नाम क्यों है ये दिया है, एंड इट विल गिव प्रॉब्लम्स, यू अंडरस्टैंड। सो इसका राइट सॉल्यूशन होता है गिव, राइट द करेक्ट लॉजिक इनसाइड ऑफ द फंक्शन, दैट इज इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ द कोडिंग। समझ में आ रहा है, जो उसको बोला गया है वही वो काम करे। अगर मैंने ऐड बोला है तो मल्टीप्लीकेशन ना करे, उसने सब्सट्रैक्शन ना करे। समझ में आ रहा है, ये प्लीज आप ख्याल में रखना। यहां पे मैं उसको करता हूं अभी सब 2,4 44 - 21, दिस इज राइट, ओके फाइन। समझ में आ रहा है, अभी मैंने सब कितने बार लिखा, सब कितने बार लिखा मैंने डेफिनेशन, सब मैंने एक बार लिखा, कॉल कितने बार किया मैंने, 2 बार। 2 बार किया। मैं ऐसे 1,000 बार करूं, मेरा एक ही डेफिनेशन कॉल होगा। समझ में आया,
अरे ये क्या इंसर्ट, यहाँ पे शिफ्ट इंसर्ट, शिफ्ट इंसर्ट, शिफ्ट इंसर्ट। सेम फंक्शन मैं कितने बार भी कॉल कर सकता हूं, एंड दैट इज व्हाट इज अ मॉड्युलरिटी, रीयूजेबिलिटी वी कैन से मैं यहां पे बोलता हूं 10, यहां पे बोलता हूं 144, यहां पे बोलता हूं 22, यहां पे बोलता हूं 23, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। और यहां पे भी मेरे को चेंज करना पड़ेगा ना, वो 23, यहां पे 22, यहां पे 144, यहां पे 10। मैं अभी 6 बार कॉल कर रहा हूं इसको, राइट, ओवरऑल, बट लिखा मैंने कितने बार? लॉजिक एक ही बार लिखा, राइट, एंड सेम विल गेट कॉल एंड गिव यू करेक्ट आउटपुट। दैट इज द पावर ऑफ कैलकुलेशन। सो कंट्रोल C 2, 3। Now you check last 3-4 statements. Is it giving correct output? Same function, reusability. Okay? ठीक है? So I think okay, let me check here. Pass by value we have seen, return by value also we have seen. You understand? जो आंसर में मैंने कलेक्ट किया था, दैट इज नथिंग बट रिटर्न वैल्यू। जो अभी मैंने प्रिंटफ में किया यहां पे, ये %d, लास्ट वाला %d पे क्या हो रहा है, ये सब करके जो वैल्यू आ रहा है रिटर्न से, वो यहां पे ये %d में मैं डायरेक्टली प्रिंट कर रहा हूं। समझ में आया? सो पास बाय वैल्यू कवर्ड, रिटर्न बाय वैल्यू कवर्ड। सो हियर यू सी द प्रोटोटाइप्स। प्रिंट हेलो, नो आर्गुमेंट, विदाउट रिटर्न। नाउ अभी आपको समझ में आता रहेगा मैंने क्या लिखा था। क्यूब इज अ फंक्शन हैविंग 1 आर्गुमेंट, राइट, ऑफ टाइप इंटीजर। क्यूब, स्मॉल क्यूब इज अनदर फंक्शन। यस, फंक्शन कैन रिटर्न ओनली 1 वैल्यू at 1 attempt, but there is way, okay, in like in the next topics maybe, you know, so we have not covered the entire C as such, okay, but there is a way with same function you can return more than 1 value. That is called return by reference. Okay, so pass by value, pass by reference, those are topics. So pass by reference, return by reference I have not covered, not covering. Okay, so float, cint as a function having 3 arguments returning float. So this is how we learn, this is how we declare the signatures. Okay, and we can write the functions. So in functions we have again 2 types, built-in function and user defined type. UDF is user defined functions, okay, or UDT you can talk. User defined types, okay, user defined functions, actually this is more appropriate. So built-in functions, as we saw, scanf, printf, clr, scr, limit, right? So stdio.h library functions has all the stuffs in it. So you can you should know what are the libraries are there, what are the functions in it. Okay, नहीं तो क्या होगा, आपको पावर लिखना है 2 to the power n, right? आप लॉजिक लिखते बैठोगे, बट वेयर एज दैट फंक्शन इज ऑलरेडी देयर इन द लाइब्रेरी इन math.h. तो math.h में क्या लाइब्रेरी फंक्शंस है, सील है, फ्लोर है, राइट, लिमिट में मैक्स है, मीन है, राइट। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। ओके, ग्राफिक्स है, कितने लाइब्रेरीज है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू लर्न, राइट। हम दोनों ने मिलके, हम सब ने मिलके 100 प्रोग्राम भी करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सी के एक्सपर्ट हो गए और मैंने सी का पूरा पढ़ा दिया आपको। इट इज ओशन एक्चुअली, ओके। सो यू नीड टू नो मेनी थिंग्स एक्चुअली, ओके। सो ऑल दीज लाइब्रेरीज यू नीड टू नो, राइट, इफ यू वांट टू गो इन सी, व्हाट आर द फंक्शंस अवेलेबल, क्या रेडीमेड है, क्या मेरे को लिखना पड़ेगा, मेरे को अगर लिखना है तो क्या ना रीयूज एनी अदर फंक्शन अवेलेबल ऑलरेडी,
राइट? ये सब आपको पता होना चाहिए. सो यहां पे यूजर डिफाइंड फंक्शन जो अभी हमने लिखा, प्रिंट हेलो, एड, सब, मल्टीप्लीकेशन, सिंपल इंटरेस्ट, राइट, अकाउंट बैलेंस, ये सब होंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस. ओके, सो दिस इज हाउ टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस वी कैन हैव. ओके, सो कभी कभी क्या होता है, बीइंग अ प्रोग्रामर, आप सोचते नहीं हो डायरेक्टली, आप ये करने को जाते हो कि मैं प्रोग्राम ही करूं उसका, बट आपको ये भी देखना है कि यार ये रेडीमेड है क्या, कहीं पे कोई लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है क्या, कि मेरा काम एक सेकंड में खत्म हो जाए. आप बैठते हो रात भर, पावर का प्रोग्राम लिखा आपने, और आपको मजा आ गया कि पावर का प्रोग्राम लिखा, लेकिन आपने रात भर बैठा, ये लॉस हुआ. जिसने आपको काम दिया था उसका लॉस हुआ कि आपने 8 घंटा उसके रिसोर्सेज यूज किए, राइट? आपने मेहनत की अननेसेसरी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने अननेसेसरी मेहनत की. जब पावर वाला फंक्शन है, वो आपको क्यों पता नहीं है? एक सेकंड में काम होने वाला, उसको आपने 10 घंटे लगाए. इज इट एफिशिएंसी? इट्स नॉट एफिशिएंसी, इट इज अ ब्लाइंड मेहनत. कावर कष्ट म्हणतात ना, दिस इज नॉट स्मार्ट वर्क. हमको स्मार्ट वर्क करने को आना चाहिए. ओके, so these are few tips. I think I can wrap now. So if you have any question for me today or anytime, you can reach out on my YouTube channel, because this WhatsApp group will go away once we finish this exam and all stuff. Okay, but I'll be available on the WhatsApp group. Okay, and I'll be publishing whatever I feel, time to time, like say deployment, okay, security related stuff, or some talks, right? We can be there. Okay, so thank you so much, and I wish all the best for your exam. Okay, thanks a lot.